Okay, ji. First of all, a little bit of revision. Now, I think today I'm going to ask few questions randomly. Okay, roll number 40. I don't know the name. Roll number 40. Is he or she present? 40. Roll number 40. Please write yes if you are present in the class. Okay, roll number 45. So these two roll numbers are not present in the class. Okay, roll number 65. Beta, what are you trying to hide from? हमने सिर्फ just general discussion करनी है related to the topics we have covered so far in previous lectures. अगर नहीं आता होगा तो कोई मसला नहीं है उसमें. So no one is showing up. Okay, I'm writing it down. G, roll number 40, roll number 45, roll number 65. Okay. Okay जी, just random question फिर मैं पूछता हूँ, जो willing है वो आंसर करेगा उसको. ठीक है, it's useless. I mean, अगर आप नहीं voluntarily कर रहे इसमें contribute, I don't know whether you're sleeping or what, whether you're present here or not. Anyways, I will find it out later on. These three roll numbers responded. Why didn't they respond? Okay, all right. Okay, G, what is nitrogen balance? Any idea? G, what is nitrogen balance? ठीक है जी. Input of nitrogen is equal to output of nitrogen. Very good. What is nitrogen imbalance? Obviously, when the input of nitrogen is not equal to output. What about positive nitrogen balance? G, very good. Roll number 10 and 49, very good. Okay, positive nitrogen balance के बारे में क्या ख्याल है आपका? Intake exceeds the excretion. Very good. Can you quote some examples? जी, इनपुट ज़्यादा होता है, इनटेक ज़्यादा होता है और आउटपुट या उसकी जो एक्सक्रीशन होती है वो कम होती है. ओके, प्रेगनेंसी एंड convalescence, very good. Childhood, very good. Okay, fair enough. Okay, what about negative nitrogen balance? Wound healing, very good. Negative nitrogen balance के बारे में क्या ख्याल है? Would it be exactly opposite to what we studied about positive nitrogen balance? अच्छा, इनटेक लेस देन आउटपुट की बजाय अगर हम कह दें कि आउटपुट इज ग्रेटर देन द इनटेक. जी, मोर आउटपुट देन इनपुट. ठीक है, कोई एग्जांपल्स आती हैं ज़हन में? फास्टिंग, स्टारवेशन, वेरी गुड. ट्रॉमा. ओके, ठीक है, ठीक है, बेहतरीन हो गया, ज़बरदस्त है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट इट, and that's what my concern is.
Okay, now let's move on to the next few topics related to proteins, which are very important. We'll try to cover very two important diseases which are associated with the protein energy malnutrition or calorie malnutrition. इससे पहले कुछ एक दो स्लाइड्स रह गई थी just few points related to proteins, the basic functions in the body और उनकी रोजमर्रा में आपको RDA कितनी चाहिए होती है. Okay. We all know, I mean, proteins are responsible for the provision of structure. They are responsible for growth and maintenance of tissues, regulation of different type of body processes, such as hormones, key functioning, enzymes, and nucleoproteins. Then comes the immunity. ठीक है, वो भी it is dependent on proteins. सर्कुलेशन ब्लड की होनी, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स का आना जाना सब कुछ ठीक है. इट इज़ एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स. कई जगह पे प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट का काम कर रही होती हैं, कैरियर्स का काम कर रही होती हैं. ठीक है. एंड अ बैकअप सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है. लास्टली जब आपके कार्बोहाइड्रेट्स यूटिलाइज हो जाते हैं, आपके लिपिड्स यूटिलाइज हो जाते हैं और उसके बाद फिर प्रोटीन्स बच जाती हैं, तो उसका ब्रेक डाउन शुरू होता है एंड इट कैन बिकम अ सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल. आरडीए फॉर प्रोटीन. ओके, डिफरेंट एज ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट आरडीए बनाई गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड. आपको पता होना चाहिए इन्फेंट्स के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर, एडोलेसेंट बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर, जो एडल्ट्स होते हैं या फिर जो स्पेशल सिचुएशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी और लैक्टेशन जो कि ज़्यादा प्रोटीन रिक्वायरिंग होती हैं, उनके अंदर रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कितना है प्रोटीन का, जनरलाइज्ड. ठीक है. इन्फेंट्स की बात करें तो इट्स समवेयर अराउंड 2.4 ग्राम्स पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर 2.4 पर किलोग्राम, तो इन्फेंट अगर फॉर एग्जांपल 5 किलो का है या 4 किलो का है, तो यू विल मल्टीप्लाई दैट 4 विद 2.4, जो आपको टोटल आएंगे ग्राम्स, उतने उसकी रोजमर्रा की बेसिस पे आपने उसकी डाइट के अंदर इंक्लूड करने हैं. चिल्ड्रन अप टू 10 years 1.75 grams. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ सम चाइल्ड इज 20 kg, आप उसको 20 kg को 1.75 से करोगे मल्टीप्लाई, और जो आंसर आएगा इतना प्रोटीन उसको चाहिए होती है रोजमर्रा में. एडोलेसेंट बॉयज के लिए डिफरेंट है, गर्ल्स के लिए डिफरेंट है. 1.6 ग्राम पर किलोग्राम इन केस ऑफ बॉयज, 1.4 grams पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे इन केस ऑफ गर्ल्स. एडल्ट्स की बात करें जिसके अंदर मेन एंड वुमेन आ जाते हैं, दोनों के लिए सेम है. दैट इज वेरी इजी फिगर टू रिमेंबर, दैट इज 1 ग्राम पर किलोग्राम. ठीक है. 70 किलो का इंसान है अगर, तो 70 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए उसको रोज की एटलीस्ट मिनिमम. ठीक है. टू कोप विद द बॉडीली फंक्शंस. प्रेगनेंसी के अंदर ऑब्वियसली जस्ट लाइक एनी अदर सिनेरियो, हम पहले से बात करते आ रहे हैं. वी स्टार्टेड ऑफ विद द फॉलिक एसिड, उसके अंदर रिक्वायरमेंट, और उसके बाद आयरन और भी काफ़ी ढेर सारी चीज़ें जो कि प्रेगनेंसी के अंदर चाहिए होती हैं. ठीक है. द नीड ऑफ द बॉडी इज इनहांस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेबी या फीटस इनसाइड द बॉडी. ठीक है. ऑब्वियसली नीड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, तो सप्लाई भी ज़्यादा करनी पड़ेगी. दैट बिकम्स 2 ग्राम्स पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे. ठीक है. तो प्रेगनेंसी में अगर एडल्ट वुमेन की बात करें तो वो 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे है, और अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो इट बिकम्स डबल, 2 ग्राम्स पर किलोग्राम बॉडी वेट. लैक्टेशन के अंदर ऑब्वियसली एक एडिशनल टास्क होता है, टू प्रोड्यूस मिल्क. ठीक है. बॉडी के पास तो उसमें और ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है. आपकी जो डेली इनटेक होनी चाहिए प्रोटीन की, वो और बढ़ जाती है. वो प्रेगनेंसी की निस्बत से थोड़ी सी और ज़्यादा होती है. दैट बिकम्स 2.5 ग्राम्स पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे. ठीक है. So just to have an idea about different age groups and the RDAs according to that particular age group, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कौन सा पेशेंट आपके पास किस स्टेज के ऊपर आया है, उसकी उसकी रोज़मर्रा की प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या नहीं हो रही. तो अकॉर्डिंगली आप उसको फिर एडवाइस करेंगे या आप उसकी डाइट के अंदर प्रोटीन्स को इंक्लूड करेंगे अगर इफ इट बिकम्स यू फाइंड इट डेफिशिएंट. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी. देयर आर सो मेनी कॉन्सिक्वेंसेज, जस्ट लाइक फंक्शंस हमने इसके पढ़े हैं. इसके स्ट्रक्चर एलिमेंट से शुरू करें, फिर इसके ब्लड रेगुलेशन, फिर न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. और इम्यूनिटी और ढेर सारे फंक्शंस पढ़े हैं. अगर फर्ज करें आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन डेफिशिएंट हो जाती है, ठीक है, तो काफ़ी इट कैन लीड टू सो मेनी कॉन्सिक्वेंसेज. ठीक है. ऑन योर हेल्थ.
चिल्ड्रन के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रोथ रिटार्डेशन, ठीक है, उनकी ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो जाएगी, वो उस स्पेस के ऊपर नहीं बढ़ेगी जिस स्पेस पे इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल चिल्ड्रन बढ़ती है, बढ़नी चाहिए, ठीक है। प्रोटीन डेफिशिएंट चिल्ड्रन के अंदर ग्रोथ रिटार्डेशन वुड बी द फर्स्ट फाइंडिंग। एडल्ट्स के अंदर वेट लॉस हो सकता है, इम्पेयर्ड हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन हो सकती है, डिलेड वूंड हीलिंग हो सकती है, इनएडिक्वेट प्लाज्मा प्रोटीन्स हो सकती हैं। और आपको पता है प्रोटीन्स अगर डेफिशिएंट हो जाएं आपकी बॉडी में तो इट कैन लीड टू एडीमा, और एडीमा ज़्यादा हो जाए तो देयर इज मोर चांसेस फॉर डेवलपिंग शॉक। रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, decreased synthesis or functioning of hormones, decreased synthesis and functioning of enzymes, ठीक है, जो उसके सारे फंक्शन है वो सारे के सारे ऑल्टर हो जाएंगे, ठीक है, ड्यू टू द प्रोटीन डेफिशिएंसी। सो दीज कुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी। और पूछा जाए तो ये 4-5-6 चीजें आप लिख देंगे। ओके, दिस इज द मेन टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज PEM, that stands for protein energy malnutrition, ठीक है। there are 2 or 3 diseases which come into the spectrum, जिसके अंदर एक आप सुनने में आएगा आपको, जो अभी हम फर्दर आगे चलेंगे उसमें क्वाशकर, फिर मैरास्मस और मैरास्मिक क्वाशकर, मिक्सचर भी हो सकता है, दोनों का डिफरेंसेस हैं वो चल के अभी आप देखते हैं। उससे पहले थोड़ी सी ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की ज़रूरत है। सेहतमंद होना, मोटा ताज़ा होना बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, ठीक है, वो भी मैल न्यूट्रिशन की जद में आता है, ठीक है। जस्ट लाइक कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है, अंडरवेट है, आप उसको कहते हैं इट्स मैल न्यूरिश्ड, ही इज़ और शी इज़ मैल न्यूरिश्ड। इसी तरह अगर कोई अपने वेट से, अपने BMI से एक्सीड करके ओबीज है, ओबेसिटी है उसको, उसको भी आप अनलाइक योर कॉमन कल्चरल टर्म के सेहतमंद और सेहतमंद घराना एंड जो ना दीज कॉन्सेप्ट्स, वो नहीं, ठीक है। ओबेसिटी इज अ कर्स, ठीक है, it is a source of so many diseases. It is called as a mother of almost all the diseases, ठीक है, even cancer, ठीक है, हार्ट प्रॉब्लम्स, डिजीज, ये जो डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और इससे उससे रिलेटेड और काफ़ी ढेर सारी। तो ओबेसिटी से बचे, ओबीज नहीं करना, अपने आप को फिट रखना है, अपने आप को, अपनी BMI को मेंटेन रखना है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो लेबल्ड एज अ मैल नोरिश्ड स्टेट। सो ओवर न्यूट्रिशन अगर करते हैं तो ओबेसिटी हो सकती है। अंडर न्यूट्रिशन जो हम अभी बात कर रहे हैं मैरास्मस क्वाशकर या मैरास्मिक क्वाशकर की, these are basically the 2 different ends, extreme ends of the spectrum of malnutrition. A healthy diet provides balanced nutrients that satisfy the metabolic needs of the body without excess or shortage, ठीक है, आपको एक बैलेंस के अंदर गज़ा खानी है, डाइट लेनी है। और लोगों को भी जब बताना है, आपने बीइंग डॉक्टर, जब डॉक्टर बन जाओगे, अपने पेशेंट्स को भी ये एडवाइस करना है कि दे शुड फोकस ऑन अ बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट डाइट, ठीक है, क्योंकि उसके फायदे हैं, उसके नुकसान नहीं है। ओके, डाइटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ चिल्ड्रन वेरी अकॉर्डिंग टू एज, सेक्स एंड डेवलपमेंट। प्रोटीन एनर्जी या कैलोरी मैल न्यूट्रिशन, जिसको हम एज अ होल टर्म यूज करते हैं, PEM, डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर तो डिफरेंट कॉजेज हैं, और डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जिस तरह हम हैं, सब कॉन्टिनेंट रीजन, ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट कॉजेज हैं, ठीक है। एक जगह के ऊपर खाना प्रॉपर मिकदार में मिल रहा है, उनके जितने फूड सप्लीमेंट्स हैं वो एडिक्वेट हैं, ठीक है, एवरीथिंग इज इन रीच ऑफ अ कॉमन मैन in comparison to underdeveloped or developing country just like Pakistan, India, Bangladesh, जो ये सारा जो सब कॉन्टिनेंट का रीजन है, इसके अंदर वास्ट मेजोरिटी इज मैल नरिश्ड ड्यू टू द फैक्ट कि उनको खाने को सही नहीं मिलता, ठीक है, उनको खाने को प्रॉपर मिकदार में खाना नहीं मिलता, या वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स नहीं वो अपनी डाइट में इंक्लूड कर पाते, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ मनी, ठीक है, पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। सो इस वजह से डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर different medical conditions are responsible for protein energy malnutrition, and underdeveloped या developing countries के अंदर there are different conditions which contribute to the development of different protein energy malnutrition states.
डेवलप कंट्रीज की बात करेंगे तो कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं, फॉर एग्जांपल ऐसी कंडीशंस जो एपेटाइट को डिक्रीज कर दें, ठीक है, या ऐसी कंडीशंस जो कि आपके स्टमक या इंटेस्टाइन के अंदर इफेक्ट कर रही हैं, कोई ऐसी पैथोलॉजी है, खाना तो वो सही खाता है, न्यूट्रिएंट्स तो वो सही लेते हैं, मगर वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, ठीक है। सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ पैथोलॉजी एसोसिएटेड विद द जीआई ट्रैक्ट। तो डेवलप कंट्रीज के अंदर दैट इज द सोर्स, ठीक है, ऑफ डेवलपिंग सच कंडीशन। हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स विद मेजर ट्रॉमा और इन्फेक्शंस, ठीक है, अगर डेवलप कंट्री के अंदर ज़्यादा अगर फॉर एग्जांपल मेजर ट्रॉमा के अंदर है या कोई इन्फेक्शियस कंडीशन के अंदर है पेशेंट, तो वो उसके अंदर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो सकती है। सच हाईली कैटाबॉलिक पेशेंट्स फ्रिक्वेंटली रिक्वायर इंट्रावीनस पेरेंट्रल और ट्यूब बेस्ड एंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। आप उनको ओरल रूट से नहीं दे सकते, ठीक है, वो खा नहीं सकते। फॉर एग्जांपल ऐसा पेशेंट है जो कि बहुत ज़्यादा हाईली इन्फेक्शियस है, उसका स्टमक नहीं टॉलरेट कर पाता चीज़ों को, उसके एसोफेगस के अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसके माउथ के अंदर अल्सर्स बने हुए हैं, ठीक है। तो दो तरह की आप उसको, जाहिर है फूड तो देना है आपने, या तो आप इंट्रावीनस रूट चूज करते हो या फिर आप ट्यूब डालते हो उसके, ठीक है, जो कि रीच करती है टूवर्ड्स द लोअर एंड ऑफ द स्टमक और वहां तक खाना पहुंच जाता है और आगे वो इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। पीएम में ऑल्सो बी सीन इन चिल्ड्रन और द एल्डरली हु आर मैल नूरिश्ड। डेवलपिंग कंट्रीज की बात करते हैं। इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ प्रोटीन और एनर्जी इज द प्राइमरी कॉज ऑफ पीएम, ठीक है। हो सकता है कि आपकी पैथोलॉजी या एक क्लिनिकल स्टेट ऐसी हो जो कि आपकी न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर अपटेक के अंदर हर्डल हो, प्रॉब्लम क्रिएट करे, मगर वास्ट मेजॉरिटी जो प्रेजेंट करती है वो दैट इज अ रिजल्ट ऑफ इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ प्रोटीन और एनर्जी, ठीक है, जिसकी वजह से प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो जाती है। इसको यहाँ मुझे लिख देना चाहिए था अंडर डेवलप्ड भी, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट पाकिस्तान, इट्स अ डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री? जी, जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, it's a developing country. Okay. All of the parts of Pakistan are developing, or some parts. If we talk about major cities, then you can say developing. कभी आप पेरिफेरी में गए हो? अंडर डेवलप्ड से भी बहुत बुरा हाल है वहाँ। हाँ, आप मेजर सिटीज़ को छोड़ देंगे, वो आप डेवलपिंग कह सकते हैं, वो भी डेवलप्ड नहीं है फुली तरीके से, ठीक है। मगर काफ़ी एरियाज ऐसे हैं आपकी कंट्री के अंदर जो कि अभी स्टिल दे आर अंडर डेवलप्ड, सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ, ठीक है। और आपकी ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ रहती है जो कि प्रेजेंट करती है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के साथ, ठीक है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ दिस थिंग, एटलीस्ट वी शुड कंट्रीब्यूट एट अवर एंड्स टू इम्प्रूव। अपनी कंट्री को इम्प्रूव करने के लिए आपको अपनी एफर्ट्स देनी है, अपनी कंट्रीब्यूशन देनी है, ठीक है, ताकि आपकी कंट्री भी कहीं कहीं स्टैंड करे अमंग डिफरेंट ग्रेट नेशंस। एनीवेज, ओके जी। Affected individuals show a variety of symptoms including depressed immune system with the reduced ability to resist infection, ठीक है। एक पूरा स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम किस तरह है? फॉर एग्जांपल हमने बात की प्रोटीन्स के ढेर सारे फंक्शंस हैं, ठीक है, जिसके अंदर इम्यून सिस्टम भी आ गया, जिसके अंदर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स भी आ गए, ठीक है, उसके अंदर ब्लड भी आ गया, आरबीसीज, एंजाइम्स, हार्मोन्स, काफ़ी ढेर सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल एक अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर या रीजन के अंदर, फॉर एग्जांपल सम चाइल्ड इज डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर प्रोटीन इनटेक और एनर्जी कंटेनिंग सब्सटेंसेस उसको या फूड नहीं मिलता, तो क्या होगा? एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और एक चेन ऑफ इवेंट्स इन द बॉडी विल टेक प्लेस, ठीक है। सिर्फ प्रोटीन नहीं, आई मीन सिर्फ प्रोटीन नहीं खा रहा तो प्रोटीन नहीं, सिर्फ उसका मास नहीं कम हो रहा, सिर्फ उसका वजन कम नहीं हो रहा, मगर उसके अंदर इंक्रीज चांस हो गया इन्फेक्शंस का, ठीक है। एक हेल्दी इंडिविजुअल, एक हेल्दी चाइल्ड की बात करेंगे, जो आगे डिजीज आनी है छोटी उम्र में होती हैं, ठीक है, बड़ी बहुत एक्सट्रीम ऑफ एज में भी हो सकती हैं, बहुत बुढ़ापे में भी जाके होती हैं, मगर यूजली बच्चों में होती हैं, ठीक है। सो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, उसके फंक्शंस आपके ज़हन में आ जाने चाहिए, वो सब कुछ पॉसिबल है उस पेशेंट के अंदर जिसके अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है, ठीक है। एक नॉर्मल सा ऑर्गेनिज्म जिसके अगेंस्ट वास्ट मेजॉरिटी ऑफ योर पॉपुलेशन हैज डेवलप्ड इम्यूनिटी, बट
he becomes a victim of that particular infection. Reason being his or her diet is deficient in protein. ठीक है. सो इस तरह ही उसका स्ट्रक्चर भी आप देखने में उसको देखेंगे तो मैसिएटेड सा होगा. ठीक है. और तस्वीरें दिखाता हूँ अभी आगे चल के. आपको द पिक्चर शुड बी इन योर माइंड. अगर आप इस तरह का बच्चा देखें तो आपके जहन में ये दो प्रॉब्लम्स आनी चाहिए. उनको डिफरेंशिएट भी करना आना चाहिए. ठीक है. तो उनकी जो ओवरऑल एबिलिटी होती है टू रेजिस्ट इन्फेक्शन, दैट इज रिड्यूस्ड और एब्सेंट. ठीक है. बिकॉज इम्यून सेल्स बनने हैं प्रोटीन से, प्रोटीन वो खा नहीं रहा. ठीक है. तो मुकाबला क्या करेगा. ओके. डेथ फ्रॉम सेकेंडरी इन्फेक्शन इज वेरी कॉमन. ठीक है. जो मोर्टेलिटी चार्ट है अभी वो भी आगे चल के दिखाता हूँ आपको. ठीक है. वो उसके अंदर आप प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन कॉन्स्टिट्यूट्स द मेजर पोर्शन. ठीक है. टू एक्सट्रीम फॉर्म्स हैं, क्वाशरकर एंड मरास्मस. क्वाशरकर और मरास्मस में मेन डिफरेंस क्या होता है जी? कोई आइडिया? मैंने आपको कहा था थोड़ा सा इसको पढ़ के आना. मरास्मस और क्वाशरकर में मेन डिफरेंस क्या होता है बेटा? जी वेरी गुड. 113 प्रोटीन. हाँ जी. इम्यूनिटी भी डिक्रीज हो जाती है. अच्छा, किसी को आइडिया, किसी ने कुछ थोड़ी सी नज़र मारी किताब को जाके या इंटरनेट से भी सर्च कर सकते थे आप? क्वाशरकर और मरास्मस में कोई डिफरेंस पता लगाने की कोशिश की? थोड़ी सी एफर्ट, कोई 5 मिनट अपने बिजी रूटीन में से निकाल के. एडीमा. ओके. बेसिक डिफरेंस अगर बताएंगे पहले तो फिर वो ये एडीमा तो आगे कॉन्सिक्वेंस है ना उसका. क्रॉनिक है. क्या क्रॉनिक है? मरास्मस. ओके. वे टू बी सिग्निफिकेंटली लो फॉर देयर एज. ठीक है. दोनों में हो सकता है. और इसके अलावा जी. ओके. मरास्मस क्या होती है बेसिकली? आपकी कैलोरीज डेफिशिएंट है. बच्चे की कैलोरीज डेफिशिएंट है. एक एक आपको पता है ना, एक जर्नलाइज्ड चार्ट जो दिया जाता है वो दिया जाता है अगेंस्ट जो वेट एंड एज. ठीक है. बच्चे की वेट के ऊपर, हाइट के ऊपर या एज के ऊपर. ठीक है. एक चार्ट होता है. ठीक है. उसके मुताबिक आपकी कैलोरीज डिटरमिन की जाती हैं कि आप इस एज में फॉल करें, आपका वेट इतना है और आपकी हाइट इतनी है, तो आपको पर डे के लिहाज से इतनी कैलोरीज चाहिए. कैलोरीज कैन कम फ्रॉम एनी सोर्स. कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, लिपिड्स भी हो सकते हैं, फैट्स भी हो सकते हैं. ठीक है. जितने भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपने पढ़े थे. ठीक है. सो अगर मरास्मस की बात करें तो डेफिशिएंट कैलोरीज इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मरास्मस. क्वाशरकर की बात करें तो कैलोरीज तो शायद उसकी पूरी हो रही होंगी, मगर स्पेसिफिकली विल टॉक अबाउट प्रोटीन्स हियर. प्रोटीन विल बी डेफिशिएंट. ठीक है. इन पर्टिकुलर प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी इन केस ऑफ क्वाशरकर. शायद हो सकता है उसकी कैलोरीज पूरी हो. आई मीन देखो ना, अगर इसको एक बच्चा है जिसको खाने को कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है, और एक बच्चा है जिसको कुछ ऐसा स्टार्ची फूड या ऐसा कुछ चावल वगैरह मिल रहे हैं मगर प्रोटीन ऐसा नहीं मिल रही. ठीक है. मगर दोनों कैन लीड टू अ स्टेट कॉल्ड एज क्वाशरकर. ठीक है. अगर स्पेसिफिकली कैलोरीज प्रीडोमिनेंट होगी तो मरास्मस बोलेंगे, और प्रीडोमिनेंटली अगर आप प्रोटीन की डेफिशिएंसी की बात करेंगे, वेयर एज लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स वो कंज्यूम कर रहा है बट प्रोटीन्स की स्पेसिफिकली उसके अंदर डेफिशिएंसी है, तो फिर द कंडीशन विल बी कॉल्ड एज क्वाशरकर. ठीक है जी. ठीक है. ओके जी. विल गो वन बाय वन. Okay. Insufficient calorie intake causing undernutrition, insufficient intake of one or more of the essential nutrients, especially protein, और energy malnutrition, malabsorption syndrome से भी हो सकती है. ठीक है. Increased requirement और destruction और excretion. ठीक है. Malabsorption syndrome क्या हो सकता है? कोई भी ऐसी condition जो कि that would lead to inefficient absorption of a particular nutrient. ठीक है. It can be a intestinal problem disease, it can be a stomach disease. ठीक है. आपके पूरे GI tract के अंदर there could be any problem whether genetic or acquired that can lead to decreased absorption or absent absorption of a particular nutrient. ठीक है. तो malabsorption syndrome. ठीक है. मोटी मोटी एग्जांपल्स में बता देता हूँ. celiac disease is one of the example. Whipple's disease is one of the examples.
ठीक है। इसके अलावा क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। काफ़ी ढेर सारी पैथोलॉजीज हैं, जब आप आगे चल के पढ़ोगे तो ये ऑल ऑफ दीज कंडीशंस आर 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 अ पार्ट ऑफ माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम कैस्केड, ठीक है। क्योंकि इन सारी प्रॉब्लम्स के अंदर, इन सारी डिजीज़ के अंदर आपकी इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होती है, ठीक है, और आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। दैट लीड्स टू अंडर न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन। ओवरव्यू उसका देख लेते हैं। द मेजोरिटी ऑफ वर्ल्ड्स चिल्ड्रन लिव इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। अगर आप ओवरऑल देखो, कुछ मुल्कों को निकाल के दोबारा 15-20, ठीक है, टोटल काफ़ी ढेर सारे मुल्क हैं, ठीक है, ठीक है, 125 से 150 मुल्क है आपकी, ठीक है, तकरीबन इतना होगा। उसके अंदर कुछ मुल्कों को निकाल के, जो कि जिनको हम कह सकते हैं कि जो प्रॉपर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उसके अलावा जो वास्ट मेजॉरिटी है आपकी चिल्ड्रन की, वो ऐसी जगहों पे रहती है या तो वो अंडर डेवलप्ड है या वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है। और उसके साथ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। ये जो जितने भी डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके अंदर यूजली फूड की शॉर्टेज रहती है, क्लीन वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती, सैनिटेशन का निज़ाम बड़ा पुअर होता है, और फिर ऑब्वियसली ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स लीड टू इंक्रीज इन्फेक्शन रेट, ठीक है। रिजल्ट क्या होता है? लो बर्थ वेट, LBW, लो बर्थ वेट बेबीज पैदा होते हैं और वो कोप नहीं कर पाते। एक लो बर्थ वेट बेबी पैदा हो, उसको आप, वो जो हमने याद है एडिक्वेट इनटेक पढ़ी थी पीछे, DRIs पढ़े थे, उसके अंदर एग्जांपल दी थी कि प्री टर्म इन्फेंट पैदा होता है तो उसको आप उसी फॉर्मूला के ऊपर डील करते हो जो कि फुल टर्म इन्फेंट ने खाना होता है, रिगार्डलेस ऑफ द फैट कि अपनी उम्र से 2 महीने पहले पैदा हो गया, 1 महीना पहले पैदा हो गया, ठीक है। सो उसी तरह ही उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है। मगर अगर वी आर टॉकिंग अबाउट अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री, उसके अंदर लो बर्थ वेट तो पैदा हुआ ही हुआ ड्यू टू सम इन्फेक्शन इन द मदर, ठीक है, मगर वो पैदा होने के बाद भी उस बेचारे को खाना नहीं नसीब हो रहा, ठीक है। तो क्या होगा? और ज़्यादा इन्फेक्शंस होने के चांसेस हैं उस बच्चे के अंदर, ठीक है। उसकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होगी, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो सकती है, ठीक है। सो malnutrition is implicated in more than 50% of the deaths of less than 5 years old children, ठीक है। अगर 100 बच्चों की डेथ होती है अंडर 5 years ऑफ एज, उसके अंदर 50% से ज़्यादा मैल न्यूट्रिशन की वजह से मरते हैं, ठीक है। और जो ओवरऑल जो एक नंबर है, दैट इज समवेयर अराउंड 5 मिलियन पर ईयर। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 50 लाख बच्चा पर साल मैल न्यूट्रिशन की वजह से उसकी डेथ होती है, ठीक है। और प्रिवेंटेबल है, ठीक है, अगर प्रॉपर सोर्सेज प्रोवाइड की जाएं, अगर उनकी न्यूट्रिशन पे ख्याल दिया जाए, तो ये डेथ्स को आप बचा सकते हो। ओके, जस्ट टू हैव एन आइडिया कि मैल न्यूट्रिशन जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, विल गो वन बाय वन। सबसे कम है जी मलेरिया की वजह से, दैट इज 5%। मीजल्स की बात करें 7%, देन कम्स पेरीनेटल कॉजेस, ठीक है, 18%, डायरिया 19%, और बाकी और वजूहत मिला के समवेयर अराउंड 32%, acute respiratory infections 19%, ठीक है। Whereas malnutrition contributes to 55% of the total deaths all over the world, ठीक है। So malnutrition के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर malnutrition को बचाया जा सकता है तो आप 55% ऑफ द डेथ्स को के नंबर को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अ रिवर्सिबल वन। ओके जी, epidemiology, let's have a look. The term protein energy malnutrition has been adopted by WHO in 1976, ठीक है। PM का कॉन्सेप्ट 1976 में सबसे पहले WHO ने अडॉप्ट किया। उससे पहले ये चीज़ें तो होती थी, प्रोटीन एनर्जी malnutrition, क्वाशकर, ये वो, मगर इसको उस तरह अडॉप्ट नहीं किया गया था, ठीक है, बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम एंड WHO, as we all know, World Health Organization is responsible for conducting, you know, different types of activities as far as different types of communicable or non-communicable diseases are concerned. तो उन्होंने अपने चार्ट के अंदर उसको इंक्लूड किया, उसको अडॉप्ट किया, उसके ऊपर काम करना शुरू किया। हाईली प्रेवलेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज अमंग लेस देन 5 चिल्ड्रन,
लेस देन 5 जिनकी एज होती है चिल्ड्रन, उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। स्वेयर फॉर्म्स 1 to 10% एंड अंडरवेट जो होते हैं वो 20 से 40% के दरमियान में फॉल करते हैं। अब जितनी भी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होती है, मोस्ट ऑफ देम या ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आल्सो हैव माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी एज वेल। ठीक है, अगर वो सॉलिड कंपोनेंट या मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा तो देयर आर वेरी फ्यू चांसेस कि उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट भी मिल रहा होगा। ठीक है, सो आपको कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, अगर आपको अपीयरेंस से पता लगता है कि किसी को क्वाशकर है या मरासमस है, तो आपको उसके दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी डिटरमिन करना है उसकी बॉडी के अंदर कि कौन कौन से डेफिशिएंट है और उनकी कमी को पूरा करने की कोशिश करनी है। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? लैक ऑफ फूड, पॉवर्टी, ठीक है, फैमिन, इनएडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग, रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स अबाउट न्यूट्रिशन। क्या रॉन्ग कॉन्सेप्ट है आपके मुल्क के अंदर? 3-4 महीने का बच्चा होता है, माँ या बाप या कोई चाचा मामा ताया और कोई दूसरा रिश्तेदार वो बड़े बेताब हो रहे होते हैं कि इसको खाना शुरू करा दें हम किसी तरीके से। होता है ऐसे यूजली यहाँ? इज इट अ राइट प्रैक्टिस और रॉन्ग प्रैक्टिस? जी, मतलब बड़े तो हो ही जाना है उस बेचारे ने, क्यों उसको बहुत पहले आप 3-4 महीने के अंदर ही जो है आप शुरू कराना चाहते हैं? 1 साल तक माँ का दूध काफी होता है, ठीक है, और इसी वजह से अल्लाह ने वो सारा सिलसिला बनाया हुआ है, ठीक है, लैक्टेशन का प्रोसेस और ये सारा सिलसिला। और वीनिंग जो होती है वो समवेयर अराउंड 6 months एंड ऑनवर्ड, 7 और 8 months के ऊपर वीनिंग करवाई जा सकती है, ना भी करवाई जाए, ठीक है, तो आपका 1 साल तक माँ के दूध के ऊपर बच्चा आराम से पल सकता है। ठीक है, यूज टू कराने के लिए उसको क्योंकि वो आप बैक होल्ड जब करता है, वो बैठना शुरू करता है, दैट इज अराउंड 6 months टाइम, ठीक है, जब उसके आप माइलस्टोन्स पढ़ोगे आगे चल के पीडियाट्रिक्स के अंदर, तो उसके बाद फिर डेफिनेटली वो चीज़ों को ग्रैब भी करने की कोशिश करता है और सारा सिलसिला। इस वजह से उसके बाद आप वीनिंग, उससे छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, उसकी सारी नीड्स, उसकी सारी कैलोरीज मदर्स मिल्क से पूरी हो सकती हैं, ठीक है। उसको डिफरेंट किस्म की पुडिंग्स खिलाने का या और चीज़ें हैं, वो होता क्या है, वो माँ का दूध छोड़ देता है, ठीक है, और वो जायका लग जाता है ना मुंह को उसके, ठीक है, और वो फिर दूसरी चीज़ों के ऊपर, और वो रोता है बहुत ज़्यादा, और फिर होता क्या है कि जो माँ के दूध के अंदर सारी न्यूट्रिशियस चीज़ें जानी थी, न्यूट्रिएंट्स जाने थे उसको, वो नहीं जाते और काम हो जाता है ख़राब। जी, वीनिंग इज इंट्रोडक्शन ऑफ अ सॉफ्ट ब्लैंड डाइट टू अ चाइल्ड। वो जो छोटे बच्चों को नहीं मैश करके पोटैटो या इस तरह की चीज़ें, ठीक है, नरम गज़ा, हाँ बिल्कुल रिलैक्स भी हो सकता है, वो आहिस्ता आहिस्ता आप देना शुरू करते हैं, ठीक है, समवेयर अराउंड 7-8 months के ऊपर, ठीक है। मगर कुछ लोग बहुत बेताब होते हैं, आई मीन बीइंग डॉक्टर आपको पता होना चाहिए कि देयर इज नो नीड। जी, मैश बनाना भी देते हैं, वो जो शहद और हनी और वो जो पैदा होते कई लोग उसको वो चटा रहे होते हैं, वो भी काम सही नहीं होता, ठीक है ना, वो एक खास किस्म का बैक्टीरिया है, वो इट कैन लीड टू अ प्रॉब्लम। एनीवेज, ठीक है, फेमिन का क्या मतलब होता है? ठीक है, एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ फूड, ठीक है, अफ्रीका के एरियाज आप टीवी में देखते होगे, या वो जो डिस्कवरी चैनल और ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनके अंदर आप देखते होगे अफ्रीका के अंदर देयर इज एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ फूड, ठीक है, तो वहाँ जहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा है, हमारे पेरिफेरीज के एरियाज, किसान तबका या जो जो लो लेवल के ऊपर काम करते हैं दिहाड़ी के ऊपर, ठीक है, एवरी डे बेसिस के वो वेजेस लेते हैं अपनी, ठीक है, हार्डली पूरा कर पाते हैं उनके अंदर, ठीक है, इनएडुकेट ब्रेस्ट फीडिंग, अगेन वही एग्जांपल जो मैंने आपको बताई, बड़ी जल्दी है आपको अपने बच्चे को जवान करने की और उसके अंदर ताकत लाने के लिए, ठीक है, हालांकि विद टाइम उसने कर लेना है, बट आप उसकी ब्रेस्ट फीडिंग, और इन अदर केस कि देयर आर सर्टेन इंस्टेंसेस जहाँ प्रॉपर मदर अपना मिल्क नहीं बना पाती ड्यू टू सम रीजंस, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, ठीक है, उनके केसेस के अंदर ये हो सकता है। रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स अबाउट न्यूट्रिशन अभी बात हो गई। डायरिया एंड मैल एब्जॉर्प्शन, इसके भी बहुत ढेर सारे कॉजेज हो सकते हैं।
अक्सर जगहों पे साफ पानी मैसर नहीं है, तो पीपल बिलीव कि ये साफ पानी है, मगर वो साफ पानी नहीं होता, ठीक है। एंड उसकी वजह से देयर आर सर्टेन वायरसेस एंड बैक्टीरियाज, रोटा वायरस हो गया या और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो गए विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ डायरिया। अब किसी बच्चे को डायरिया लगा हुआ है तो जो उसको खिला भी देंगे, ठीक है, तो वो क्या है, वो जब अब्जॉर्ब होने से पहले ही पेरिस्टाल्सिस तेज हुई नहीं है, वो सब कुछ बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सर्टेन टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस बच्चों, छोटे बच्चों के अंदर वर्म्स बड़े कॉमन होते हैं, फिकोरल रूट से ही आते हैं, खाने पीने की चीज़ों से ही आते हैं। कई बच्चों को रेत खाने का शौक होता है, सीमेंट खाने का शौक होता है, ठीक है, मिट्टी खाने का शौक होता है, उसके अंदर से वर्म्स आ सकते हैं। मीजल्स, ठीक है, टीबी वेरी कॉमन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ट्यूबरक्लोसिस पेरिफेरी के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। ऑल ओवर द वर्ल्ड बिल्कुल जीरो पे चल जा चुकी है, ठीक है, मगर ये वाला रीजन है, ये इधर टीबी अभी तक नहीं कंट्रोल हो पा रहा, ठीक है। सो ऑल दीज कंडीशंस कैन बी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोटीन एनर्जी malnutrition. जी, very good. थर पार्कर is one of the example. जी, सही कह रहे हैं। Okay जी, let's have a look on types of PEM या protein energy malnutrition. The first one is marasmus. The second one is Kwashiorkor. Mainly आपसे ये दोनों पूछी जाएंगी। There is a chance कोई ज़्यादा नंबर देने के लिए आपसे पूछ सकता है वाइवा के अंदर फाइनल में marasmus Kwashiorkor क्या होती है। So it would be a mixture of both, combination of both, ठीक है। marasmus most common in tropical regions, ठीक है, results from the starvation in small children. डाइट जो होती है एक्सक्लूसिवली इनसफिशिएंट इन कैलोरीज, जितनी कैलोरी उसकी बॉडी को चाहिए उस पर्टिकुलर एज पे, उस पर्टिकुलर वेट पे, उस पर्टिकुलर हाइट पे, वो उतनी कैलोरीज रोजमर्रा की बुनियाद पे वो नहीं उसको मिल पा रही होती। सो द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर रिमेन्स अ कैलोरी, ठीक है। इन केस ऑफ मेरेस्मस लो कैलोरीज, ठीक है, ये याद रखेंगे। The term marasmus is derived from Greek word marasmos, which means wasting. Marasmus involves an inadequate intake of calories and is characterized by emaciation. What does this mean? Have you heard about emaciation? जी, emaciation क्या होता है? क्या it's what does it mean? जी, okay, due to extreme weight loss, unnatural thinness देखी है आपने किसी के अंदर, जो जरूरत से ज्यादा थिन हो बच्चा, ऐसे बच्चे रोजमर्रा में देखने को मिल जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। ड्यू टू द लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, कैलोरी डेफिशिएंट है, सबक्यूटेनियस फैट बेचारा कहाँ से आएगा, उसका तो तब आएगा ना जब उसको कैलोरीज से आगे लिपिड बना रही है, ठीक है। तो सबक्यूटेनियस फैट नहीं होगा, एबनॉर्मली थिन होगा ऐसा बच्चा, ठीक है। और मसल वेस्टिंग भी आएगी, बिकॉज लॉन्ग टर्म में अगर प्रोटीन नहीं मिल रही उसकी, तो उसका जितना मसल डेवलप हुआ है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो मार्क्ड वेट लॉस होता है, ऐसे बिल्कुल थिन लीन पेशेंट्स होते हैं मेरेस्मस के। Marasmus represents the end result of starvation where both proteins and calories are deficient, ठीक है। Marasmus में body utilizes all fat stores before using muscles. This is the picture of marasmus. Yeah, you can see the ribs of this child here, all the bones. अब बिल्कुल भी subcutaneous tissue नहीं है beneath the skin. क्वाशियरकर की बात करें, it is primarily due to diet very low in proteins. Most limiting factors इसके अंदर
प्रोटीन्स का आ जाएगा, मरासमस के अंदर कैलोरीज का था। ये जरूरी ये नहीं है कि सिर्फ कैलोरीज ही डेफिशिएंट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि प्रोटीन्स भी डेफिशिएंट हो सकती हैं उसके अंदर, और आई मीन ओवरऑल ही खाना नहीं चारे को मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, ना कैलोरी फूड मिल रहा है ना प्रोटीन मिल रही है, ठीक है। मगर जो ज्यादा इफेक्ट आता है, या जो जिसको आप कहते हो द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर अमंग ऑल अदर फैक्टर्स, is proteins in case of kwashiorkor and calories in case of marasmus. इसके क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं, इसके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं। क्वांटिटी प्रॉपर कंज्यूम नहीं कर पाता। एक खानदान है 15 या 20 लोगों का, ठीक है, और रिसोर्सेज नहीं है उनके अंदर, प्रोटीन बेशक पका भी ली जाए घर में खाने के लिए, मगर वो जो पर पर्सन जो उसका शेयर आएगा वो बहुत रिड्यूस्ड होगा, तो क्वांटिटी एडिक्वेट नहीं गई। वो जो नंबर ऑफ ग्राम्स हमने आरडीए के पढ़े थे वो नहीं गए, उसको नहीं मिले। और क्वालिटी, व्हाट टाइप ऑफ प्रोटीन दे आर कंज्यूमिंग, ठीक है, कंप्लीट प्रोटीन ले रहे हैं जिसके अंदर सारे अमाइनो एसिड्स जो जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो हैं उसके अंदर या नहीं है, ठीक है, या कोई ऐसी प्रोटीन ले रहे हैं जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाइनो एसिड्स डेफिशिएंट हैं। सो उसकी क्वालिटी, so the both aspects are important, quantitative as well as qualitative. जी ठीक है, all of the terms are right, all of your terms are right. ओके जी, इन दो में डिफरेंशिएट अगर कभी करना हो तो अब कर पाओगे? आई मीन थ्योरेटिकली तो कर सकते हो राइट, क्योंकि मैंने सिर्फ एक की पिक्चर दिखाई है, दूसरी की पिक्चर नहीं दिखाई। थ्योरेटिकली तो कर सकते हो राइट। अगर मरासमस को आपको देखना है तो बहुत थिन लीन पेशेंट आएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा थिन लीन पेशेंट आएगा। आपके जेन में आ जाना चाहिए इसको कैलोरीज ठीक नहीं मिल रही, सबक्यूटेनियस फैट भी नहीं होगा। क्वाशियोकर की बात करते हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी इतना थिन लीन ना हो, वो उसके अंदर कहीं ना कहीं एडिमा हो, ठीक है। देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स जो कि अभी हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे डिटेल में, तो उससे आपको डिफ्रेंशिएट कर पाओगे दोनों कंडीशंस को। ओके जी, लुक एट द चाइल्ड, थिन लीन नहीं है इन कंपैरिजन टू मरासमस। सबक्यूटेनियस फैट भी थोड़ा सा नजर आपको आ रहा है, ठीक है। फेस पे देखो डीमा आया हुआ है, बिकॉज देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एक्सक्लूसिवली। हो सकता है उसके बाकी कैलोरीज मिल रही हो, मगर एडिमा उसकी प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से आ रहा है। ये देखो एडिमा, एल्बुमिन नहीं है उसके अंदर, एसाइटीज डेवलप हो गई है उसको। एसाइटीज मींस कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द एब्डोमेन। लुक एट द फेस, अगेन लुक एट द फेस, ठीक है, थोड़ी सी पॉट वाली नजर आ रही है आपको इसकी। ओके, लेट्स हैव अ लुक ऑन डिफरेंसेस बिटवीन द टू। आपकी जो लिपिन कॉर्ड बताती है वो कुछ ये डिफरेंसेस हैं। आई थिंक दीज आर मोर देन सफिशिएंट। इसको हम डिटेल में भी करेंगे वैसे, ठीक है। उसमें डिटेल में करने का फ़ायदा ये होता है कि आप अगर 10 डिफरेंसेस पढ़ते हो तो उसमें से आपको 5 तो याद रह ही जाते हैं राइट। और अगर आप 5 या 6 पढ़ते हो तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसके अंदर कम लिखो, क्योंकि इससे कम लिखोगे तो नंबर कटेंगे। तो बाकी नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर कुछ और फर्दर डिफरेंसेस भी करते हैं, मगर दिस इज द मिनिमम रिक्वायर्ड आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके जी, कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, फिर फर्स्ट जो टेबल है वो दैट इज अबाउट क्वाशियोकर, उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, और जो सेकंड है उसको कंपैरिजन किया हुआ है मरासमस के साथ। वेट फॉर एज या परसेंटेज एक्सपेक्टेड, जितना एक पर्टिकुलर एज के अंदर वेट होना चाहिए क्वाशियोकर में और मरासमस के अफेक्टेड बच्चों के अंदर कितना कितना होता है, ठीक है। 60 to 80% होता है क्वाशियोकर के केस के अंदर, और मरासमस के अंदर लेस देन 60% होता है, ठीक है। बिकॉज मरासमस का बच्चा कैलोरीज डेफिशिएंट होता है, सबक्यूटेनियस फैट तक भी नहीं होता उसके अंदर, और ये सिर्फ प्रोटीन डेफिशिएंसी है, ठीक है। इस वजह से थोड़ा सा वेट ज़्यादा हो सकता है क्वाशियोकर के बच्चों का
in comparison to the ones suffering from marasmus. Weight for height normal or decreased क्वाशरकर के केस के अंदर, मार्कली डिक्रीज होगी इन केस ऑफ मरासमस. प्रोटीन्स नहीं है आपके पास, बिल्कुल ही नहीं, ठीक है. और एक कंडीशन के अंदर प्रोटीन्स हैं मगर कैलोरीज नहीं है, ठीक है. एडिमा प्रेजेंट होगा ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन. मरासमस के अंदर इट इज यूजुअली एब्सेंट. मूड जो होगा इरिटेबल होगा व्हेन पिक्ड अप. एपैथिक होगा व्हेन लेफ्ट अलोन. एपैथिक मींस नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है. वो किसी किसी तरह की भी कोई अलर्टनेस वाला नहीं शो कर रहा, ठीक है. मरासमस के अंदर यूजुअली अलर्ट होता है क्योंकि वो कैलोरीज डेफिशिएंट है. ही वांट्स टू हैव कैलोरीज. इसमें यूजुअली कैलोरीज तो फुल हुई है उसकी, मगर बेजान सा पड़ा हुआ है ड्यू टू द डेफिशिएंसी, एक्सक्लूसिव डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स. और इरिटेबल रहेगा, ठीक है. उसको कैलोरीज नहीं पूरी मिल रही, उसकी भूख नहीं पूरी हो रही, उसकी जो बॉडी की नीड है वो पूरी नहीं हो रही. एपेटाइट क्वाशरकर के अंदर कैलोरीज का ऐसा देखें इशू नहीं होता. इसके अंदर हम बार बार कर रहे हैं क्वाशरकर के अंदर के प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है, तो इसका अंदर कैलोरीज पूरी हो रही हैं, उसको ऐसा भूख उसकी पूरी होगी. मतलब ही इज डन विद द कैलोरीज, ही इज डेफिशिएंट इन प्रोटीन्स. मगर मरासमस वाला बच्चा जिसके अंदर कैलोरीज ही डेफिशिएंट है, उसको खाना सही नहीं मिल रहा, जिसके अंदर प्रॉपर कैलोरीज उसकी बॉडी नीड्स के मुताबिक नहीं मिल पा रही, तो वो हर टाइम भूखा रहेगा, ठीक है. उसकी एपेटाइट गुड नज़र आएगी आपको. जब भी आप उसको ऑफर करेंगे वो एकदम से खाने की तरफ माइल होगा, उसको पकड़ेगा, उसको खाएगा, ठीक है. इन कंपैरिजन टू क्वाशरकर. WHO क्लासिफिकेशन दैट इज़ नॉट रिटन इन योर बुक्स. इसको मैंने एक्वायर किया है एक जगह से. इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना बेशक. ये पूछ लेते होते हैं आपके UHS वाले, ठीक है. उसके अंदर इस तरह ही WHO क्लासिफिकेशन पूछ सकते हैं मैल न्यूट्रिशन की. उसके अंदर फिर आपने 3 स्टेट्स के बारे में बताना है. क्वाशरकर 60 to 80% of the body weight compared to standard weight. Edema will be present. Deficiency in weight to height positive. मरासमिक क्वाशरकर के अंदर लेस देन 60 होगा, एडिमा पॉजिटिव होगा और डेफिशिएंसी इन वेट टू हाइट ज़्यादा होगी. मरासमस के अंदर लेस देन 60% ऑफ द बॉडी वेट, एडिमा नहीं होगा. दैट इज़ अ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इन बिटवीन क्वाशरकर, marasmic kwashiorkor, and both when you compare with the marasmus alone. So there will be no edema. और weight to height जो है वो भी उसकी deficiency भी होगी. There will be a lot of difference between, वो accurate नहीं जा रहा होगा. weight for height या height for weight की बात करेंगे तो appropriate नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा difference होगा. Comparisons देख लेते हैं between क्वाशरकर and marasmus in detail. Features, first chart के अंदर you can see here these are the features, और फिर हम against the heading of marasmus and क्वाशरकर उनकी characteristics देखते जाते हैं. Age of onset. marasmus usually below 1 year of age present कर देता है. बहुत छोटे बच्चों के अंदर होता है जो पहले साल के अंदर फॉल करते हैं. क्वाशरकर यूजली 1 साल से लेके 5 साल के बच्चों के अंदर पाया जाता है, ठीक है. डेफिशिएंसी कैलोरी या एनर्जी की होगी इन केस ऑफ मरासमस. क्वाशरकर की बात करेंगे तो एक्सक्लूसिव प्रोटीन डेफिशिएंसी. कॉजेज के अंदर मरासमस के कॉजेज के अंदर अर्ली वीनिंग आ सकती है एंड रिपीटेड इन्फेक्शंस आ सकती हैं. क्वाशरकर के अंदर स्टार्ची डाइट आफ्टर वीनिंग आ सकती है. 1 साल का बच्चा हुआ, आपने चावलों पर लगा दिया उसको, ठीक है. स्टार्च कंटेनिंग डाइट, ये नूडल्स वगैरह, ये जितने पास्ताज होते हैं स्टार्च कंटेनिंग होते हैं, ठीक है. और अक्सर बच्चे लगे होते हैं उसके ऊपर, ठीक है. और ये प्रेसिपिटेट कब होती है? जब भी ऐसे बच्चे को कभी इन्फेक्शन आ जाती है, ठीक है, और ही और शी प्रेजेंट्स, तो आगे चल के पता लगता है कि उसको क्वाशरकर हुई है. ग्रोथ रिटार्डेशन की बात करें, मरासमस के अंदर मार्क्ड होती है. ओवरऑल कैलोरीज डेफिशिएंट है उसकी, ठीक है, तो ग्रोथ रिटार्डेशन ज़्यादा हायर लेवल पे होगी. क्वाशरकर के अंदर प्रेजेंट होती है ग्रोथ रिटार्डेशन,
पर इतनी ज़्यादा मार्ग नहीं होती, बिकॉज सिर्फ एक एक कॉम्पोनेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट जो प्रोटीन है वो ज़्यादा उसमें कम है, बाकी उसको फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स से कैलोरीज जा रही होती हैं। एटीट्यूड की बात करें, मरासमस में जो बच्चे का एटीट्यूड है, दैट द चाइल्ड विल बी इरिटेबल। क्वाशरकर के अंदर लेथार्जिक या एपैथिक। अपीयरेंस की बात करें तो श्रंकन विद स्किन एंड बोन्स ओनली। मरासमस के अंदर डिहाइड्रेटेड लगेगा आपको, ठीक है। और क्वाशरकर का एक करेक्टरिस्टिक साइन है, एडीमा आ जाता है फेस के ऊपर और खास तौर पे लोअर लिम्स के ऊपर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। एपेटाइट के अंदर नॉर्मल होगी मरासमस के अंदर, एनोरेक्सिया होगा क्वाशरकर के अंदर। डायरिया और वॉमिटिंग की बात करें, वॉमिटिंग इज मोर कॉमन इन केस ऑफ मरासमस, और डायरिया इज ऑलवेज प्रेजेंट, क्रॉनिक एंड इंटरमिटेंट। यूजली क्वाशरकर के बच्चे वो होते हैं जिनके अंदर concurrent और भी conditions आती हैं. Most of the kwashiorkor children also presents with some intolerances, जिसके अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस आ जाती है, सैकराइड्स की इंटॉलरेंस आ जाती है, ठीक है। तो उनको बेसिकली ऑस्मोटिक डायरिया ही रहता है अक्सर औकात। स्किन ड्राई एंड एट्रोफिक होगी इन केस ऑफ मेरास्मस। क्वाशरकर की बात करेंगे तो डर्माटाइटिस हो सकता है ड्यू टू पीलिंग या क्रैकिंग। हेयर की बात करेंगे, मेरास्मस के अंदर इतनी ज़्यादा करेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होती, क्योंकि क्वाशरकर के अंदर प्रोटीन स्पेसिफिकली डेफिशिएंट है, तो स्पार्स हो सकते हैं, सॉफ्ट एंड थिन हेयर हो सकते हैं, और कर्ल्स जिन लोगों के होते हैं वो लॉस हो सकते हैं उसके अंदर। एसोसिएटेड फीचर्स के अंदर देख लें, अदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती है मेरास्मस में, वाटरी डायरिया हो सकता है, मसल्स आर वीक एंड एट्रोफिक, एंगुलर स्टोमेटाइटिस हो सकता है क्वाशरकर के अंदर, वाटरी डायरिया भी हो सकता है, मसल्स अंडरगो वेस्टिंग, क्रॉलिंग एंड डिलेड वॉकिंग, ठीक है, क्वाशरकर के अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से। अगर आप सीरम इन्वेस्टिगेशंस करवाएं ऐसे बच्चों की, तो ये भी अच्छा डिफरेंशिएटिंग हो सकता है पॉइंट। अगर आप यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड बाय लुकिंग एट द फिजिक, द अपीयरेंस ऑफ द बेबी या चाइल्ड 1 to 5, एज तो डिफरेंस आ ही गया, मगर कई जगह पे कंसाइड भी कर जाते हैं, पूरे 1 साल का बच्चा तो क्या करेंगे, ठीक है। सो आप सीरम एल्बुमिन करवा लें उसका। मेरास्मस के केस के अंदर 2 to 3 ग्राम्स पर डेसीलीटर होगा। इन केस ऑफ क्वाशरकर इट विल बी लेस देन 2 ग्राम पर डेसीलीटर। तो इधर से आपको क्लियर डिस्टिंक्शन या डिफ्रेंसिएशन मिल जाएगी इन बिटवीन मेरास्मस एंड क्वाशरकर। दिस इज अ पिक्चर ऑफ मेरास्मस। This is the picture of Kwashiorkor. Any questions? Ji, any questions? So I hope roll number 40, 45 and 65 have joined the lecture. Roll number 40, please raise your hand. Ji, roll number 40. Roll number 40, please. Roll number 45. Okay, okay, here you are, roll number 40. Would you like to tell me about marasmus? In fact, would you like to tell all of the class about marasmus? Ji, write a line or two about marasmus in the chat box. क्या अंडरस्टैंड किया मरासमस से आपने?
जी रोल नंबर 40. Okay, roll number 45. G, very good. It's a severe type of malnutrition due to deficiency of what? ये पता होना चाहिए. Energy. Energy in the form of? Energy in the form of? You can use the term? नहीं, यहाँ थोड़ा सा कर गए हो. प्रोटीन एनर्जी नहीं, हम रैस्मस की बात करें. आप कैलोरीज की बात करोगे, ओवरऑल कैलोरीज. जी 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 जी. द मोस्ट लिमिटिंग इसमें प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं और न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं. जैसा हमने शुरू में बात की, खाने को नहीं मिल रहा तो जाहिर है क्या होगा, मगर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कुछ खाने को मिले जिससे बाकी चीजें तो पूरी हो जाए मगर कैलोरीज एडिक्वेट ना आ सके उसको. ठीक है, तो कैलोरीज इज द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर इन केस ऑफ मरासमस. क्वाशकर की बात करें, रोल नंबर 45. जी रोल नंबर 45. ओके जी, बताइए. व्हाट डू यू नो, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टर्म और कंडीशन और डिजीज? क्वाशकर. जी ओके जी, टाइम इज अप. ठीक है, विल कंटिन्यू दिस टॉपिक फर्दर. प्रोबेबली नेक्स्ट टॉपिक फैट्स और लिपिड्स का रोल न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, फिर विटामिन्स, वाटर, ये सारा कुछ हमने दोबारा से देखना है इसके ऊपर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर डे आफ्टर टुमारो प्रोबेबली. ठीक है, तो एनी क्वेश्चंस? ओके, हाँ, मैं टाइम शॉर्ट हो गया है, 1 बज गया है पूरा. ठीक है, आई कैन नॉट कंटिन्यू द लेक्चर फ्रॉम हियर ऑन. मैं इसका आंसर आपको दे दूंगा. 128 ने क्वेश्चन पूछा है मेरास्मस में वाई एब्डोमिनल इज लार्ज. वील स्टार्ट ऑफ विद दिस क्वेश्चन in our next lecture. Okay, okay, thank you so much. Allah Hafiz.